Hello, good morning, F5 students. Let's start with the FC. Today our Unit 2's first chapter is over. Today I'm going to start Unit number 2's second chapter. I will send you the notes today. Let's start. That we had learned about that human rights, the concept of human rights, evolution of human rights, UDHR, Universal Declaration of Human Rights, that civil rights. Now we will discuss into the detail. What are the fundamental rights? So write down the first point. Civil right. Civil right. Have you a note and pen? Yes or no? Hello. Are you writing? Yes, ma'am. Okay. Civil right with special reference. Civil right with special reference to fundamental rights. To fundamental rights in India. Civil rights with special reference to fundamental rights in India. I will send you the notes. Okay, let's start. Introduction. Civil rights are the rights against both state and society. Civil rights are invaluable privileges without which no person can attain his best self. In the modern state, they are guaranteed to all without distinction of the caste, creed, religion, or sex. Some scholars classify the civil and political rights as the type of immunities since they protect the person against encroachment by the government. So, what is civil rights? They are the civil means they are against the state and the society. These rights are given to you, or these rights are given to us to protect ourselves. That's why it is not based on the caste, creed, religion, or sex. But this with this right, we can protect ourselves in every encroachment which is given by the government. यहाँ पे जो हम सिविल राइट्स की बात करें तो सिविल राइट्स मीन्स हम बोलते हैं कि जो सोसाइटी से अपोज में है या हम बोलते हैं कि क्या बोल सकते हैं स्टेट के अपोज में है क्योंकि ये जो आप जब भी आपको ये सिविल राइट्स दिया जाता है तो आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए सिविल राइट्स दिया जाता है कि ना वो किसी बेस पे मीन्स ना वो कास्ट के बेस पे बनाए गए हैं ना क्रीड के बेस पे बनाए गए हैं ना सेक्स के बेस पे बनाए गए लेकिन सभी को एक जैसा मिलना चाहिए सभी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए इसकी वजह से आपको सिविल राइट्स दिया गया है आगे देखते हैं सिविल राइट अभी सही मायने में उसका मीनिंग क्या है द स्टेट एज वेल एज द सोसाइटी मस्ट रिस्पेक्ट द सिविल राइट्स The state is further responsible for providing adequate legal protection to the civil rights of all the persons. Civil rights without proper legal protection are like the tiger without teeth or claws. The state must create mechanisms such as the judiciary and police to enforce the civil rights. तो सिविल राइट्स को हम बोलते हैं कि जैसे civil rights that state and the society means all individuals have to respect or must respect the civil rights. So whenever we talk about that civil rights, so without civil rights the society is like a tiger without teeth and the claws. कि जब हम सिविल राइट्स की बात करें और जो सोसाइटी में सिविल राइट्स नहीं है तो वो सोसाइटी कैसे कहलाएगी कि जैसे जब हम बोलते हैं कि बाघ है पर उसको दांत नहीं है उसका क्लॉज नहीं है उसके पंजे ही नहीं है तो वो टाइगर कैसे दिखा रहा है टाइगर जैसे नहीं दिखाई देगा तो विदाउट सिविल राइट सोसाइटी कान बी परफेक्ट तो इसकी वजह से सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या दिया गया है जुडिशरी दिया गया है मीन्स न्यायालय दिया गया है पुलिस दिया गया है कि जो हमारी रक्षा कर सके समझ में आया डू अंडरस्टैंड डू अंडरस्टैंड यस और नो हेलो Yes, ma'am. ओके देन नेक्स्ट पॉइंट इज अभी राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ अभी राइट डाउन राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ नो discrimination in this application no discrimination non discrimination in this application that ब्रैकेट में लिखिए आर्टिकल 7 यूडीएचआर अभी यहाँ से आपको राइट टू फ्रीडम राइट टू लाइफ सब अभी यहाँ पे स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम बोलते हैं यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ उसकी बात करते हैं द आर्टिकल 7 ऑफ यूडीएचआर स्टेट दैट all are the equal before the law and entitled without discrimination to equal protection of the law कि जब हम
कानून की बात करते हैं तो कानून कैसे होना चाहिए, सबके लिए कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर भी कभी कभी हमें सोसाइटी में ऐसे दिखाई देता है कि कभी कभी सत्ता या पावर या पैसों की जरूरत है, जो हम बोलते हैं कि जो जस्टिस मिलना चाहिए इनोसेंट पीपल को या रियल पीपल को, तो वो मिलता नहीं है। लेकिन कानून कैसा होता है, एक कैसा होता है, सबके लिए कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। देन आर्टिकल 726 of ICCPR state that the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any grounds such as sex, race, color, language, religion, political or opinion, national or social origin, property, birth or other status। तो जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ किस किस से जुड़ा हुआ है, कौन सी चीज़ों से जुड़ा है कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के बारे में है, या हम बोलते हैं कि बर्थ के बारे में या स्टेटस के बारे में है, या हम बोलते हैं कि ओपिनियन के बारे में है, नेशनल और सोशल ओरिजिन के बारे में है, कलर है, सेक्स है, रेस है, लैंग्वेज है, रिलीजन है। तो सबके लिए कानून कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई मकान है, हेलो, डू यू लिसन मी, एम आई ऑडिबल ना? हाँ, जैसे कोई मकान है, वहाँ पे हम Yes, बोलते हैं ma'am. कि वो माँ बाप रहते हैं, पर उनको 2 बच्चे हैं। तो फिर माँ बाप के चले जाने के बाद वो मकान कितने हिस्सों में बँटना चाहिए? कितने हिस्सों में बँटना चाहिए? 2 बच्चे हैं तो कितने हिस्सों में बँटना चाहिए? बँटवारा कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, समान। इक्वल दोनों होना को चाहिए, समान। दोनों को समान। सो दैट इज फॉर दैट, फॉर द प्रोटेक्शन दैट सिविल राइट्स आर गिवन टू अस, कि हाँ प्रॉपर्टी के बारे में है, मकान के बारे में है, तो सबके लिए न्याय कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल जैसे हम अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, स्टेट टू स्टेट, विलेज टू विलेज, सिटी टू सिटी, हमारा लैंग्वेज चेंज होता है। एम आई राइट? एम आई राइट? हाँ या ना? हमारा लैंग्वेज चेंज होता है। Though we are speaking the different language, but our tone is the same as we speak from our childhood. So आपको किसी ने ऐसा बैंड लगाया, कभी किसी को ये नहीं बोला जा सकता आपको कि आप ये लैंग्वेज मत इस्तेमाल कीजिए। आपको कोई प्रोटेक्शन मीन्स आपको कोई ये बैंड नहीं लगा सकता, ये लैंग्वेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ये रिलीजन नहीं अपना सकते, आपको किसी ने बैंड नहीं लगाया। सो आपको क्या बताया जाए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स जो आपको कायदा कानून बताया गया है या कानून दिया गया है वो सबके लिए कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज Indian position. The general objective of right to equality is to establish egalitarian society, devoid of any kind of discrimination which lead to the exploitation and suffering of the people who are discriminated against. It is one of the greatest goals of the democratic society. Equality, however, it is easier to talk about than achieved. In the Indian context, it becomes a Herculean task for the state to achieve the goals of equality as professed in the preamble of the Constitution and in Article 14 to 18. In this context, the provision in the Articles 14 to 18 are extremely important. तो यहाँ पे आपको ऐसा बताया है कि फॉर एग्जांपल जब हम इंडियन पोजीशन की बात करते हैं या इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि राइट टू इक्वलिटी सबको मिलना चाहिए। लेकिन सही मायने में या जब हम उसका रियलिटी में जब उसका पिक्चर देखें या इमेज देखें तो सबको इतना राइट टू इक्वालिटी मिलता है क्या? ऑल वी गेट राइट टू इक्वालिटी दिस लॉ? यस और नो? ऑल वी गेट? डू वी गेट? यस मैम। नहीं मिलता है। क्यों? फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास है, पैसे वाले लोग हैं, तो सबके घर कैसे हैं, अलग अलग हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो झोपड़ी में रहते हैं, मिडिल क्लास वाले ठीक ठाक मीन्स उनका एक हम बोलते हैं घर है, और जो बड़े लोग होते हैं वो बंगलों में रहते हैं। तो आपको राइट टू इक्वालिटी दिया गया, तो इक्वालिटी कैसा होने चाहिए, सबके लिए एक जैसा होने ना, तो फिर घर भी सबके एक जैसे होने चाहिए। तो ये हमको कहीं ना कहीं हमको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। फिर कास्ट को लेके ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। और हम बोलते हैं कि एक इंडियन सोसाइटी के लिए जो हम बोलते हैं कि राइट टू इक्वालिटी ये जो टास्क है
वो हम बोलते कि एक हरक्यूलिन मीन्स हम बोलते कि इमेजिनरी टास्क है, हम बोलते तो है लेकिन उसका सही में कितना अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो हमको पता नहीं होता है। कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि दूसरा एक बात करना है एजुकेशन के बारे में। तो जैसे हम सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, जब एजुकेशन की बात आती है तो लड़के और लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। हाँ, लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो लड़कियों को क्यों कभी कभी किस घरों में क्या हो जाता है कि लड़कियों को वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता। क्या सोचा जाता है, ये पढ़ लिख के क्या कर लेगी, या हम बोलते कि ये आगे जाके क्या कर लेगी। सो दैट इज़ द थिंग। समझ में आया? समझ में आया? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. हाँ, तो राइट टू इक्वालिटी कहाँ हुई? राइट टू इक्वालिटी कहाँ हुई? अभी हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की ना। हम बोलते कि अभी 5 पॉइंट हैं, आप लिखिए। पहले सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, 5 पॉइंट है इम्पोर्टेंट, ये हम बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं। द 5 आर्टिकल्स, राइट डाउन द 5 आर्टिकल्स, द 5 आर्टिकल्स cover right to equality. The 5 articles cover right to equality. Written? The 5 articles cover right to equality. Written? Yes or no? Yes, ma'am. हाँ, फर्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। देन सेकेंड पॉइंट है, मैम आवाज होती है। हाँ आवाज ब्रेक होती है। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? हेलो, यस Yes, मैम। ma'am. अभी आवाज आ रही है ना ठीक से? Yes, हेलो, ma'am. हाँ। दूसरा है पॉइंट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, prohibition of discrimination on the ground of religion, comma, race, race, caste, caste, sex, sex, and place of birth, place of birth. Written, written. मैम फिर से बोलो। Prohibition of discrimination, prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, and place of birth. Caste, sex, and place of birth. Written? लिखा क्या? Yes, ma'am. ओके। अभी तीसरा Ma'am. पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in the matters of public employment, in the matters of public employment. Written? Written? Yes or no? Yes, ma'am. Yes Okay. मैम। Then next point is abolition of untouchability, abolition of untouchability, abolition of untouchability. Written? Yes, यस ma'am. मैम। Then next point is abolition of titles, abolition of titles. Written? Abolition of titles written? Yes, ma'am. यस मैम। ये 5 पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14, that it provides the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the law within the territory of India. The right to equality guaranteed under Article 14 consists of the two parts, namely the equality before the law and equal protection of the law. तो ये जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ हम बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि
ये जो लॉ दिया गया है उसको दो पार्ट में डिवीजन किया गया है। एक तो हम बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मीन्स सबके लिए क्या होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन हो जाए, सबके लिए कानून कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अभी उसको डिटेल में देखते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब क्या? इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स दैट no individual should be given any special privileges by the state. All the persons are equal, subject to the ordinary of the law of the land. There should not be any discrimination made by the law on the ground of sex, place of the birth, etc. The concept of equality before the law is closely related to the British concept of the rule of the law. The states state that the respect the rule of the law does not treat any person in discriminatory manner. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जब भी कोई कायदा कानून बनाया जाता है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके या हम बोलते हैं सेक्स को लेके कोई प्रिविलेजेस उसमें नहीं होना चाहिए। कानून कैसे होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कि हम बोलते हैं कि जब ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड कि जब ज़मीन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं, बर्थ के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है वो कानून कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि हर एक का हम जो बोलते हैं कि बर्थ प्लेस है वो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। कि फॉर एग्जांपल जैसे शादी के बाद जो लड़की होती है अपना मायका छोड़ के ससुराल में आ जाती है तो उसका हम बोलते हैं कि उसका बर्थ प्लेस कैसा हो गया, अलग हो गया ना, हाँ या ना? उसका बर्थ प्लेस कैसा हो गया, Yes, अलग ma'am. हो गया कि नहीं? बर्थ प्लेस मीन्स अलग होना मीन्स बर्थ प्लेस वही रहेगा लेकिन उसके ग्राउंड पे या उसके बेस पे उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आप उस कास्ट के कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हम बोलते कि बर्थ को लेके आपको कोई नहीं एडमिशन देगा या हम बोलते कि कोई प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होगा, कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो उस पर हमें ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे हो नहीं सकता। फिर अब बात करते हैं कि सेक्स। सेक्स मीन्स हम बोलते हैं कि लिंग, जेंडर, जेंडर इनइक्वालिटी। तो वहाँ पे भी हम बोलते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा है, आगे बात करते हैं, equal protection of the law. It means that the right to equal treatment in the equal circumstances, whether the punishment is reward, all those who are persons absolutely equal or all those persons who are equal should be treated equally. However, it is not possible to treat all the persons absolutely equal because the basic differences among them. Hence, it is necessary to classify them on the rational ground. Equality before the law also means the treating unequals unequally. For example, in the recent judgment, the Supreme Court has recommended the creamy layer of the other backward classes, इसको हम बोलते हैं कि ओबीसी, should not be given the benefit for the reservation. That people belonging to creamy layer are not educationally and socially backward, although they belong to the OBC category by birth. Hence, they should be treated differently according to the Supreme Court. तो जैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करते हैं या हम बोलते हैं कि सबके लिए प्रोटेक्शन कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो जब भी हाँ, यहाँ पे कैसा होता है कि कभी-कभी हर एक इंसान को हम बोलते हैं इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं या इक्वली ट्रीट करना चाहे तो भी इक्वली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है या एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे हम बोलते हैं कि ओपन कैटेगरी, ओबीसी, एनसी, बीसी, एससी, ऐसी कैटेगरी, जैसे हम बोलते हैं कि कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी हमारी होती है, तो यहाँ पे क्रीमी लिया पर्टिकुलर ओबीसी कैटेगरी को दिया गया है। तो ना ही वो में हम बोलते कि जैसे हम बोलते कि जो ये क्रीमी लेयर है ओबीसी कैटेगरी के लिए वो सोशली बैकवर्ड, दे सोशल दे आर नॉट सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड, बट दे हैव गिवन दिस राइट और दे हैव दैट वी आर यूजिंग दैट क्रीमी लेयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उनको भी एक कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन मिलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एससी कास्ट को, शेड्यूल कास्ट या एसटी कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए पर्टिकुलर लॉ बनाए जाते हैं, वैसे ही ओबीसी कैटेगरी के लिए भी
उनको पर्टिकुलर लॉ बनाया गया है कि जो खुद में वो प्रोटेक्ट अपने आप को कर सके। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, ma'am. डू यू अंडरस्टैंड ना? Yes, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी Yes, ma'am. दूसरा पॉइंट है जो अभी इक्वालिटी बिफोर लॉ में हमने अभी 5 पॉइंट लिखे, उसमें दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स. Okay, so there are 4 aspects of the rights mentioned in the following clause of the article. The first point is prohibition of the discrimination, article 15 clause 1. clause 1 यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे पहले देखते हैं, दिस आर्टिकल prohibits the state from the discrimination against any individual or group of any individuals. The principle of the non-discrimination is based on the equality. Dignity is also guaranteed in the rights like adult suffrage, right to vote, equality in the employment, eligibility for the president, member of the पार्लियामेंट. तो जब हम इंडिविजुअली की बात करते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो सबको, जैसे हम बोलते हैं कि इक्वालिटी राइट, अभी हम इक्वालिटी 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 है तो सिर्फ इक्वालिटी ही पढ़ेंगे. इक्वल राइट्स आर गिवन टू यू, कि फॉर एग्जांपल जैसे पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर सदस्य मीन्स कोई भी जो इंडिविजुअल है वो मेंबर हो सकता है, या पर्टिकुलर चेयर को वो डिजर्व करता है तो वो चेयर उसको मिल सकती है, वो सीट उसको मिल सकती है. यहाँ पे कोई ग्राउंड पे, या हम बोलते कि सेक्स पे, या हम बोलते कि रिलीजन को लेके या कास्ट को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि डिग्निटी के बारे में, जब हम रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं या इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो सभी रिलीजन या सभी धर्मों को या सभी को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए, एक जैसा मान मिलना चाहिए. Most probably what happens, we do not give respect to all religion, we only respect our religion. And sometimes that we know that sometimes that we do not, those who are Nastic or something like that, that though they also do not respect their own religion, they make a joke on it, and they make the joke on their goddess and goddesses. So it should be punishable कि अगर आप अपने धर्म को लेके या दूसरे के धर्म को लेके जब भी मजाक उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए. समझ में आया? समझ में आया? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज access to the public places, article 15 clause 2. This right provides that no citizen can be denied access to the public places or places of entertainment, the use of wells, tanks, roads that are maintained out of the state and on the ground mentioned earlier under article clause 115 clause 1. तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे हम बोलते हैं कि आर्टिकल 15 दो, या ये जो हम बोलते हैं कि प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, वो 4 क्लॉजेस में बटा हुआ है. तो फर्स्ट ओवर हो गया. अभी मैं सेकेंड की बात करूँ, यहाँ पे क्या बोलते कि कोई भी जो इंसान है या सिटीजन है, तो जितना भी पब्लिक प्लेसेस है उसका वो सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसको इतना राइट दिया गया है कि वो कोई भी पब्लिक प्लेसेस में जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स हो, गार्डन हो, या हम बोलते कि बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, या हम बोलते हैं कि जैसे भी कोई भी पब्लिक प्लेसेस का एंटरटेनमेंट प्लेसेस हो तो वहाँ पे आप जा सकते हैं. और दूसरा बात यहाँ पे बताया कि जैसे हम बोलते हैं कि जितने भी कुएं हैं या पानी है, टैंक्स हैं, रोड्स हैं, वो सोसाइटी हम बोलते हैं स्टेट मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए आपको ये हक दिया गया है. जैसे पहले की पहले कुछ वर्षों पहले ऐसा होता था कि कोई पर्टिकुलर कास्ट को, या हम बोलते कि शेड्यूल ट्राइब्स को, शेड्यूल कास्ट को पर्टिकुलर रोड पे जाने की इजाज़त नहीं थी, या कुएं में से पानी भरने नहीं दिया जाता था. तो ऐसा अभी डिस्क्रिमिनेशन हमको ज़्यादातर नहीं दिखा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि जैसे दापोली में अप्रैल मई आ जाता है तो पानी की हमें कमी महसूस होने लगती है, पानी कम कम हो जाता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल हर कास्ट के लोग या हर जाति के लोग जगह पैसा खर्चा करके या पैसा दे के पानी खरीदते हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर कास्ट को ही पानी देना है, इस पर्टिकुलर कास्ट को पानी नहीं देना है. तो पानी ये हम बोलते कि जितना भी पब्लिक प्लेसेस है उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं
तो आपको कहीं ना कहीं जैसे हम बोलते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी एक ओथ लिया होता है कि हम मानव सेवा करेंगे, मानव सेवा करेंगे कोई भी हाल में, या हम सोसाइटी की सेवा करेंगे। सोसाइटी में, सोसाइटी में आप जाते हैं जब हॉस्पिटल में तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कास्ट के लोग आते हैं, पर्टिकुलर क्रीड के लोग भी आते हैं, तो डॉक्टर उनको इक्वली ट्रीटमेंट देते हैं। एम आई राइट ना? डॉक्टर उनको इक्वली Yes, ट्रीटमेंट ma'am. देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जैसी बीमारी वैसी दवाएं, पर ट्रीटमेंट कैसी होती है सबके लिए एक जैसी होती है। या पर्टिकुलर कास्ट है तो उसको दूर से बात करेंगे, ऐसा कुछ आपको कभी दिखाई नहीं देगा। मीन्स इट शोज दैट if you are respect means if you respect to others, other will give you the respect. ओके, तो ये आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोटेक्शन लॉज फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। हाँ, ज़्यादातर हम जब महिलाओं और बच्चों की बात करते हैं तो क्या होता है उनके साथ, दैट अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग unequally, these clause make the provision for the positive discrimination for the women and children. यहाँ पे आपको बताया गया है कि हाँ, जब हम इक्वली बात करते हैं तो इक्वालिटी हमें ज़्यादातर महिला और बच्चों में नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन द प्रिविलेंट कंडीशन ऑफ द वीमेन एंड चिल्ड्रन in India, the provision was essential. Thus, provision for the reservation for women, free education and children and etc. will not be the violation of the Article 15. तो यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया है, यहाँ पे आपको ऐसा बताया कि ज़्यादातर हमें सोसाइटी में इनइक्वालिटी बिटवीन द जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल में हमें ज़्यादातर इनइक्वालिटी दिखाई देती है। मैंने अभी आपको जैसे एक एग्जांपल दिया, लड़कियों के ज़्यादातर पढ़ाए नहीं जाते हैं, या लड़कियों के बारे में उनका जो सोच होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। योगिता, जरा वीडियो ऑफ कर से। एवरीबडी कैन सी इट प्रॉपरली, यस नो, यस और नो? एवरीबडी कैन सी इट प्रॉपरली, हाँ या ना? हेलो? Yes, ma'am. मैं तुम्हारा वीडियो चालू है तो बंद करो, सबको दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, लड़कियों को आगे नहीं भेजा जाता है, लेकिन जैसे कुछ फिल्में जैसे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल है दंगल है, या हम बोलते हैं कि जैसे गीतांजलि है, तो ये जब फिल्में आपको देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि अभी लड़कियों का स्टेटस क्या है। क्या फॉर एग्जांपल मैंने परसों ही देखा था न्यूज़ में कि हम बोलते एक रिक्शा ड्राइवर की लड़की जो हम बोलते कि मिस इंडिया बनी, मीन्स according to the situation she faces so many problems in her life, but though she became or become the Miss India in 2020 2021। सो यहाँ पे हर्डल जितने भी आते हैं तो हर्डल्स को हटा के आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादातर किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। क्या हम बोलते कि कास्ट को लेके या जेंडर को लेके, जब आप किसी एक ही इंसान को जब अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि वही इंसान कुछ ना कुछ आपको करके दिखाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल तो हमें ज़्यादातर जैसे हम बोलते हैं कि लड़कियों को, लड़कियां क्या कर लेंगी, तो ज़्यादातर हमें क्लासेस में तो लड़कियों की स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई देती है और लड़के कम दिखाई देते हैं, लड़के कम पढ़ते हैं और लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा जब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या इनइक्वालिटी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम पे भारी पड़ जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज reservation for backward classes, Article 15, Clause 4. Like women and children in the earlier clause, the Constitution recognizes the scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes, the weaker section of the population. It authorizes the state to make special provision for the advancement of these sections, such as reservation seat in the public employment एंड इन द एजुकेशनल सिस्टम। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक पॉइंट हमने अभी पढ़ा था ओबीसी के लिए जैसे क्रीमी लेयर तैयार किया है, वैसे पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, वीकर सेक्शन है, एससी बोलते हैं, एसटी बोलते हैं, तो इस क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के, इक्वल दिखाने के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए भी सीट एम्प्लॉयमेंट में रिजर्व होना चाहिए।
या उनको फ्री एजुकेशन देना चाहिए, या पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनके लिए इक्वालिटी कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी सोसाइटी अपलिफ्ट हो सकती है, अदरवाइज सोसाइटी अपलिफ्ट नहीं हो सकती। कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कार है, तो कार के जो 4 व्हील्स हैं या 4 पहिए, तो वो जैसे एक जैसे चले, या हम बोलते कि एक साथ काम करे तभी वो अच्छा लगता है ना, हाँ या ना, तभी वो कार अच्छी तरह से चल सकती है ना, हाँ या Yes, ना। ma'am. हाँ, तो वैसे ही होना चाहिए कि जैसे आप सोसाइटी को चलाना चाहते हैं, इक्वल सोसाइटी को अपलिफ्ट करना चाहते हो, हर एक को हम बोलते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम मेज की बात करते हैं, टेबल की बात करते हैं, तो टेबल 4 पहिए पे खड़े रहता है, अगर उसमें से एक पहिया ना हो तो भी टेबल ठीक से नहीं खड़ा हो पाएगा, या 2 पहिए ना हो तो भी नहीं होगा, एक पहिया हो तो भी नहीं होगा। सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज गिवन टू एवरी पर्सन, आफ्टर ऑनवर्ड द सोसाइटी विल मेक मोर प्रोग्रेस। समझ में आया, समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. डू यू अंडरस्टैंड? ओके। मैम। अभी हम बोलते हैं कि जैसे हम अभी एक रिसेंट का एग्जांपल बात करें, रिसेंट का, कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड and if you are going to marry, okay, but if you are going to marry and if you are going to choose a person, the particular person, those who means what we can say, who is less educated than you, then would you like to accept him or her as a life partner in the first preference? In the first preference, would you like to accept him or her as a life partner? Most probably the answer is no, but not every individual or every person get each and everything. So we have to just compromise that, or we have to just adjust ourselves with him or her. So here whenever we are talking about that opportunities, that most probably opportunities in the employment also, that sometimes it is seen that if women is working, that a woman is working for 15 years or 10 years, though she is not given that senior position, or what we can say, that increment in her salary, but if the man is working that, then the senior position will be given to him, or that increment also will be given to him. So here I can give you the simple example. The movie Mardani, the Mardani movie shows that whenever that particular woman is selected for the chief commissioner, that every individual or every person think that how she will suffer, or how she will adjust herself in this particular position, कि वहाँ पे उसको एक किरदार, उस किरदार में जो किरदार उस व्यक्ति ने निभाया है, तो उस किरदार में उसने बताया में उस जो मूवी का हम बोलते थीम है कि लोगों का देखने का नजरिया, कौन है चीफ कमिश्नर, कौन है, कोई औरत है, तो औरत को देखने का जो नजरिया है कि कहीं भी कितने भी समय तक ड्यूटी है तो वहाँ पे उसको करनी पड़ती है, तो ये सब कुछ घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, ड्यूटी को भी संभालना है, तो वो किस तरह से हैंडल कर पाएगी, और वो भी पर्टिकुलर हम बोलते कि यूपी, हम बोलते कि उत्तर प्रदेश या बिहार, या हम बोलते कि ऐसे राज्य में कि जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादातर सम्मान नहीं दिया जाता, लड़कियों को सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो वहाँ पे अगर कोई लड़की चीफ कमिश्नर बन गई तो लोगों का देखने का नज़रिया कैसा हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम हम बोलते कि पुरुष कर सकते हैं, तो वो काम महिलाएं भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं। तो पर्टिकुलर जेंडर को लेके कोई भी बात में, कोई भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, समझा? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Then next point is equality of the opportunity in the matters of public employment. जैसे अभी आपको मैंने बताया, Article 21 of UDHR also declared that everyone has the right to equal access to the public services in the country. The main aim of Article 16 of our Constitution is to provide equal opportunity all citizens in the employment offered by the state or its agency. कि फॉर एग्जांपल जैसे आप ग्रेजुएट हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल जब आप नौकरी की तलाश में जाते हैं या नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर सिचुएशन ऐसी आ गई या कोई भी नौकरी आपको स्वीकार करनी पड़े,
तो आप स्वीकार करेंगे कि फॉर एग्जांपल चपरासी की भी नौकरी आपको स्वीकार करनी पड़े तो आप करेंगे? करेंगे हाँ या ना? सिचुएशन ऐसी है, करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली Yes, ma'am. करेंगे, लेकिन मन क्या बोलेगा? मन क्या बोलेगा? मन क्या बोलेगा? नहीं. नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं इतना ये नौकरी कैसे कर सकती हूँ? मैं नौकरी कैसे कर सकती हूँ? मैं नौकरी कैसा कर सकता हूँ? तो फॉर एग्जाम्पल आपको यही बात बताएंगे कि अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसा होना चाहिए सबके लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी उसके लिए कि पब्लिक ऑफ मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो हम उसके लिए कल स्टोरी में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अभी हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 क्लॉज 1, ये अलग है। हाँ, तीसरा पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। This is the basic clause stating that the equality of opportunity should be given all citizens in the matters relating to employment or appointment or to any office under the state। तो सबके लिए जो अपॉर्चुनिटी कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट more degrees and if you desire you will get more this after doing so many, after doing or after experiencing many years in the services, after that you can understand or you can get thing, you get the thing that yes I deserve for this particular position। कि कुछ साल या हम जब आप कोई भी सेक्टर में काम करते हैं तो कुछ साल उस पर आपको काम करना पड़ता है, कुछ साल उस पर गुजारने पड़ते हैं, तभी आप इतना हम बोलते कि डिज़ायर रख सकते हैं। लेकिन आप फ्रेशर्स हैं तो आप इतना डिज़ायर नहीं रख सकते, आप डिज़ायर रखना भी चाहे तो फिर आपको उतना अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है कि हाँ अभी मैं फ्रेशर्स हूँ तो मुझे 30-40,000 का सैलरी वाला जॉब मिल जाएगा। उतनी आपके पास स्किल है तो ठीक है, लेकिन स्किल नहीं है या फ्रेशर्स है तो आपको लिए वो कुछ वक्त आपको देना पड़ता है और उसके बाद आपको हम बोलते कि जो हमको चाहिए वैसा अपॉर्चुनिटी ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे लिए खड़ा होता है। तो उसका अपॉर्चुनिटी का उसको हम बोलते कि उसका हमें एडवांटेज लेना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते कि कोई अनुभवी व्यक्ति है जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं और जो फ्रेशर्स हैं वो अभी अभी लगा है, अभी अभी काम करने के लगा है, तो किसके मीन्स हम बोलते कि उसका एडवांटेज किसको ज़्यादा होगा? कि जो कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहा है तो किसको होगा ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस? किसको होगा? Do you understand what I'm saying? Do you get it? Do you get it? Hello? Hello? No, ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में एक हम बोलते हैं कि 40-45 साल का आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं और हम बोलते हैं कि एक न्यूअर और हम बोलते हैं कि न्यू फ्रेशर्स जो अभी 20-22 साल का है, तो अनुभव किसको ज़्यादा होगा? एक्सपीरियंस किसको ज़्यादा होगा? कंपनी में किस तरह से काम करना है किसको ज़्यादा होगा? किसको ज़्यादा होगा? अनुभव जो किसको उम्र ज़्यादा? में बड़ा है उसे. हाँ, जो उम्र में बड़ा है उसको। लेकिन अपॉर्चुनिटी दोनों को मिला है, अपॉर्चुनिटी दोनों को मिला है, 22 साल के लड़के को भी मिला है और 45 साल के जो इंसान है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिला है। तो फिर मेरा कहने का मतलब है जो अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल हमको सिंपल से एग्जाम्पल कि एजुकेशन को लेके कभी कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको एजुकेशन के लिए एजुकेशन करना हो कंप्लीट, लेकिन पैसों की वजह से या इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या तो फिर उनके पास कोई ना कोई सपोर्ट में खड़ा रहता है या उनकी फीस भर दे या वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी जब उनको मिलता है तो उसका सही तरीके से उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ या ना? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल से एग्जांपल तो हिचकी, हिचकी मूवी है, ओके? हिचकी मूवी सबने